Hello everyone. So we are at the last second chapter of our syllabus, which is adaptive immunity. We have already seen the innate immunity, and the second type of immunity we are going to study is adaptive immunity. Now, this adaptive immunity, it is we all know what is adaptive immunity. It is not present naturally in our body, and it is not specific. That means it depends on the antigen which is going to attack our body, or it is which is going to infect our body, and according to the antigen the immune response is generated. That's what the adaptive immunity is. Now, uh, to start directly with the adaptive immunity, we need to firstly rewind all these things like immune response, then immunity that we have seen in our previous lectures. So just small rewind for our basic understanding. So here, the immune system, we all know, it is made up of the biological structure. It is made up of the processes that is going to protect the organism against any type of the disease or infection. Now, what is the main function of the immunity or immune system is that they have the series of the organs, they have the series of the systems which work together, and they kind of help our body to fight against the decision or to disease or eliminate that pathogen. Now, this immune system must detect, now it has that ability, or it must have that ability to detect the agents such as pathogens, viruses, there may be the parasitic worms, and distinguish them from the organism of, like organism के खुद के cells, और जो पैथोजन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन्स है या इंट्रा सेलुलर पैथोजन्स है, उनमें और हमारी अपनी सेल्स में उनको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए. ये हमारे एक इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. नाउ दिस immune system in many species can be classified into innate immune system versus adaptive immune system, or humoral immune system versus the cell mediated immune system. Now, innate हमने देखा हुआ है जो naturally present है. अब we are going to study the adaptive immune system, and in the adaptive immune system there are again two types of more immunity or immune systems, which is humoral, which are humoral, and the cell mediated types of immune system. Now, before going to the main topic, which is adaptive immune system, just let's just revise the immune response concept. So we all know immune response means what? It is type of the action, or it is type of the coordinated action. Now, what is coordinated action? We all know कि कोऑर्डिनेशन में होता है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके they generate the immune response. That is why it is a coordinated response by the numerous cellular and the soluble components in the network of the tissues and the circular system that combats the pathogen injury by inert materials and cancer. बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट इन सिंपल लैंग्वेज जो हमने पहले भी देखा था, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप होता है बाय आवर बॉडी. दो वी हैव स्टडीड द इम्यून रिस्पॉन्स में हमने एक इन्फ्लामेशन, एक इम्यून रिस्पॉन्स देखा था. तो वो क्या होता है? एक एक्शन का रिएक्शन होता है. एंटीजन ने कुछ एक्शन किया, मतलब कुछ एंट्री की, तो उसका रिएक्शन जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ द इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इट इन्वॉल्व्स द मैनी सेलुलर और कुछ सोल्यूबल कंपोनेंट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं. वो एक नेटवर्क में एक्ट होते हैं, या तो वो टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रेजेंट रह सकते हैं. वो क्या क्या चीज़ों से हमें प्रिवेंट करते हैं? दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द पैथोजेंस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इंजरी. जो अगर आपको एग्जांपल दूँ तो कोई इंजरी जो हमें पियर्सिंग से होती है, लाइक अगर हमने किसी नेल नेल कील पे जाके हम टकरा गए, तो उस कील की वजह से वो पियर्स या घुस जाता है हमारी स्किन में, तो वो इंजरी से हमें प्रोटेक्ट, लाइक उसको रिकवर करना, प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो प्रोटेक्ट नहीं बट रिकवर करना. और कैंसरस सेल्स जो हमें नहीं पता हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा स्टिमुलस की वजह से कितने ट्यूमरस सेल फॉर्म होते हैं, तो वो भी एलिमिनेट होना
ये सब एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, सिस्टम्स प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करके इन सब चीज़ों को बॉडी से एलिमिनेट करती है. नाउ द मेन थिंग, अगर हम इन्फेक्शियस डिसीज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो इट जनरली इक्वेटेड विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ में जनरली नहीं बट होता ही है कि हमें उन पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है इन द इन्फेक्शियस डिसीजेस. नाउ वो कौन करता है? इम्यून सिस्टम. नाउ द इम्यून रिस्पॉन्स इज नाउ इम्यून रिस्पॉन्स अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इट इज़ अ रिस्पॉन्स विच इज स्पेसिफिक रिएक्टिविटी इंड्यूस इन अ होस्ट बाय द एंटीजेनिक स्टिमुलस. एंटीजन के अटैक की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारे बॉडी में जो स्पेसिफिक होता है विच इज़ फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन इज नोन एज द इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, देन फॉर द जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स दैट एंटीजन हैज़ टू बी activate interact with the and then activate the number of the different cells. मतलब उसको पहले आपको मैंने सिखाया था, जब मैंने आपको मैक्रोफाजेस डेंड्राइटिक सेल वगैरह सिखाया था तब हमने देखा था कि वो प्रेजेंट रहते हैं अपने एपिथेलियल सेल के पास. तो जैसे ही इंजरी के थ्रू हमारे अगर बॉडी पे कुछ इंजरी हो तो उसके थ्रू अगर एंटीजन एंटर करना भी चाहे तो वो इमिडिएटली उसको वहीं पे डिटेक्ट करते हैं. तो यही इंटरेक्शन या ये जो एंटीजन है वो कहीं ना कहीं उन सेल्स को एक्टिवेट करता है. तो ये उसका काम है. और वो एक्टिवेट होने के बाद ये जो सेल होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है. तो वो जाके प्रेजेंट हो करती है ये एंटीजन को टू द डिफरेंट सेल्स और ऐसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके दे किल दैट एंटीजन और दे एलिमिनेट दैट एंटीजन. मतलब ये एंटीजन कहीं ना कहीं एक एबिलिटी रखता है कि वो इन सब सेल्स को एक्टिवेट करे, उनको बोले नहीं बट उनको एक इनडायरेक्टली वो एक्टिवेट करके वो फर्दर एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं. ओके, सो यही प्रोसीजर इज डन बाय द इम्यून रिस्पॉन्स और इट इज़ डन बाय द एंटीजन. नाउ इम्यून रिस्पॉन्स का बस एंटीजन के अगेंस्ट ही नहीं होता, कभी कभी उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. जो हमें पता है हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है, कभी ऑटो इम्यून डिसीजेस आपने सुना होगा या फिर एलर्जिक रिएक्शंस अगर सुना होगा, इवन इन्फ्लामेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो इट इज़ ऑल्सो अ हार्मफुल इफेक्ट. तो ये भी इम्यून रिस्पॉन्सेस होती है बट वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल. सो जस्ट change the topic here. We are going to study the main topic of our syllabus which is the type of the immune response. तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन कि इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है. अभी इम्यून रिस्पॉन्स के कौन से टाइप्स होते हैं. नाउ इम्यून रिस्पॉन्स एक तो हो सकता है वो सेल मतलब जनरली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की हम अगर बात करें तो वो जनरली होता है एक तो सेल मेडिएटेड होता है या तो वो होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमरल वर्ड आते ही आपको क्या याद रखना है कि वो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर के फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है या कहीं ना कहीं लिम्फ में प्रेजेंट रहता है या ब्लड में प्रेजेंट रहता है. तो ये कंपोनेंट्स जो बॉडी में होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो अगर फ्लूइड पार्ट में हो देन दे आर द ह्यूमरल कंपोनेंट्स. और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो this immune response can be divided into the antibody mediated which is the humoral immune response and the cellular immune response जो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ द जनरेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एंटीजन मेडिएटेड इंटरेक्शंस बिटवीन वेरियस सेल टाइप. ये जो भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कितना जनरेट होगा, क्या होगा इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब किस बेसिस पे डिसाइड होता है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एंटीजन मेडिएटेड. मतलब जो सेल्स होती है उनमें इंटरेक्शन होने की वजह से ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. तो ये किस पे डिपेंड करता है, एंटीजन पे एंड द सेलुलर कंपोनेंट्स पे. नाउ जनरली दी नाउ एक तो ये सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का एक फैक्ट है कि एक तो ये एक साथ अपीयर होंगे या तो एक दूसरे के बाद अपीयर होंगे या एक दूसरे को वो अपोज करेंगे या एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे. ओके, तो ये दोनों का काम है, ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स का कि सेल मेडिएटेड है या ह्यूमरल है. ये दोनों एक तो एक साथ हो सकते हैं या तो फिर वो अपोजिट
लाइक एक दूसरे को रोकने का काम कर सकते हैं। ओके, सो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में या ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, तो अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी है मतलब एंटीजन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली वो सेल के अंदर नहीं होगा, हमारे बॉडी सेल के अंदर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन है वो जब होगा तब ये टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होंगी, दैट इज़ द सेल नॉट सेल मेडिएटेड, दैट इज़ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप होती है बट वो डायरेक्टली अटैक करती है। ओके, सो इस इम्यून रिस्पॉन्स में जनरली बी सेल्स इन्वॉल्व रहती है, जनरली नाइन वहाँ पे टी सेल्स रहती है इन द सेल मेडिएटेड में। तो बी सेल्स जो होती है आपको पता है वो मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है it is also giving the defense against the viruses that infect through the respiratory and the intestinal tract। now मतलब ये रीअकरेंस भी नहीं होने देती बिकॉज इसमें मेमोरी सेल्स होती है। देन इट पर्टिकुलरली हेल्प्स इन द पैथो, कभी कभी अगर वर्स्ट सिनारियो की बात करें तो इट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्स और समटाइम्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन द पैथोजेनेसिस। किसके पैथोजेनेसिस में, ऑटो इम्यून डिसीज में। तो आपको पैथोजेनेसिस ये टर्म पता होगा कि डिसीज होने का पैटर्न इज द पैथोजेनेसिस, मतलब डिसीज कैसे डिसीज इंक्रीज होना इज द पैथोजेनेसिस। तो ये डिसीज जो है ऑटो इम्यून डिसीज या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है आपकी बॉडी में, आपने शायद स्टडी भी किया होगा लास्ट ईयर में। तो ये जो एलर्जी रिएक्शंस होती है तो ये सब होने में ये जो सेल्स ये इम्यूनिटी है विच इज़ द सेल मेडिएटेड इम्यून नॉट सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और द ह्यूमरल इम्यूनिटी हेल्प करती है। तो क्या आपको याद रखना है इसमें, ह्यूमरल इम्यूनिटी में फर्स्टली तो ये फ्लूइड कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं वो कंपोनेंट्स इस इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये बी सेल जनरली डेवलप करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जनरली जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट डेवलप होती है, मतलब जो सेल के बाहर है। ओके, देन फोर्थ इंपॉर्टेंट कि ये वायरस का रीऑकरेंस नहीं होने देती, वायरस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। नाउ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अभी CMI उसको बोलते हैं। तो ये जो है इसमें ऑब्वियसली सेल्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसके वजह से अभी वो इंट्रा सेलुलर देती है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर नॉट एक्स्ट्रा सॉरी वो एक्स्ट्रा सेलुलर देती है तो ये इंट्रा सेलुलर इम्यूनिटी देंगी। तो जो सेल अगर छुप के बैठा है कोई पैथोजन या कुछ एंटीजन जो छुप के बैठा है किसी सेल में तो वो उसको भी एलिमिनेट कर सकती है। तो वो जनरली फंगाई के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब यहाँ पे वाइड रेंज है, फंगाई वायरसेस हो या फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हो लाइक माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, लिप्रोसी, देन ब्रुसेला, सैल्मोनेला, और अगर कोई पैरासाइट्स भी हो लाइक लेशमेनिया और द ट्रिफेनोमिया, इन सबको एलिमिनेट करने का काम कौन करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द रिजेक्शन ऑफ होमोग्राफ्ट। आपने अगर ट्रांसप्लांट मतलब आपको है आगे टर्म, ये लास्ट चैप्टर है आपका ट्रांसप्लांटेशन का, ग्राफ्ट का। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें ऑर्गन जो है कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, बॉडी में फिट नहीं हो पाता जो रिसीवर है उसके। तो ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपने अगर सुना होगा क्योंकि पता नहीं, बट जनरली जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना तब उनको जो रिसीवर है मतलब जिसको ऑर्गन रिसीव करना है वो ट्रांसप्लांट करके जिसमें वो डेफिशिएंसी ऑर्गन की जो रिसीव करने वाला है उसमें उसको एक मेडिकेशन दिया जाता है जो सप्रेसर होता है ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। वो कौन से इम्यून रिस्पॉन्स का सप्रेसर होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का, मतलब उसको ऐसी टैबलेट्स दी जाती है जो सेल मेडिएटेड इम्यून कहीं ना कहीं उसका इम्यूनिटी को वीक करती है, लाइक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। सो इससे क्या होता है वो ग्राफ्ट जो है वो बेट तो जाता है बट वो पर्सन इम्यूनोलॉजिकली वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा उसको बोला जाता है कि थोड़ी केयर रखो, पानी गर्म पियो, देन मुंह ढक के रखो, लाइक मास्क पहनो कंटिन्यूसली, ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बिकॉज छोटा इन्फेक्शन उसके लिए बड़ा हो जाता है फिर, बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम सप्रेस की जाती है। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन हम डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे ही, तब मैं आपको फिर से बताऊंगी। बट यहाँ पे आप याद रखो कि ये जो इम्यूनिटी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो रोल प्ले करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ये भी जो है डिले टाइप की जो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें
रोल प्ले करती है। इवन ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी ये रोल प्ले करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी है इनका कुछ पर्सन में, जिनमें ऑटो इम्यून डिसीजेस है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जीज है। इट प्रोवाइड्स द इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस एंड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द कैंसर। मतलब क्या इम्यूनो सर्वेलेंस, मतलब क्या मॉनिटरिंग करना कि हमारी इम्यून सिस्टम काम कर रही कि नहीं ठीक, तो ये इसमें भी हेल्प करती है। और इम्यूनिटी भी देती है कैंसर के अगेंस्ट, मतलब वो ट्यूमर सेल को एलिमिनेट करने में हेल्प करने वाले हैं। ओके, नाउ अभी आपको आई होप ये समझ आया होगा, बट आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में दिखाती हूँ। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो वाइड रेंज ऑफ थिंग्स डिटेक्ट करती है, लाइक प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इवन जो वायरस में होते हैं। देन ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो ओनली रिकॉग्नाइजेज द प्रोटीन एंटीजन। ओके, यहाँ पे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो सोल्यूबल और फ्री एंटीजन को डिटेक्ट करती है। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है जो एंटीजन्स प्रेजेंट करती है, क्लास 1 क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट रहते हैं, जो मैक्रोफाजेज डेंड्राइटिक सेल पे प्रेजेंट रहते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करती है। मतलब ये इंट्रासेलुलर भी रिकॉग्नाइज करती है। ओके, ये बैक्टीरिया वायरसेस जो है उनको इम्यूनिटी देती है, उनसे इम्यूनिटी देती है, सॉरी, ये जो है इंट्रासेलुलर को देती है। एंड दिस ह्यूमरल इम्यूनिटी और द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो टाइप 1, 2, 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये टाइप 4 में इन्वॉल्व है, ओनली सेल मेडिएटेड, और एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन ये भी करता है और वो भी करता है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, हियर वी हैव अवर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ हम अपने चैप्टर के 2 पार्ट्स हम स्टडी करने वाले, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। टू स्टार्ट विथ वी विल बिगिन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इसमें आपको मैंने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि वो इंट्रासेलुलर जो है वो पैथोजेंस को, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। वो ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है, वायरसेस में तो ज़्यादा रोल प्ले करता है, रीऑकरेंस होने नहीं देता उनका। तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी काइनेटिक्स है इम्यून रिस्पॉन्स की, कि वो कैसे जनरेट होता है, कितनी देर तक रहता है, कितनी अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, कितना टाइम लेता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये रिस्पॉन्स, हम ये देखने वाले हैं इन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इसमें जो सिंथेसिस होती है एंटीबॉडी की, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को ही एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है वो जनरली 3 फेजेस में होती है, एक लैग फेज में, एक लॉग फेज में, एंड एक प्लेट्यू और द स्टेडी फेज। तो लैग फेज क्या होता है? लैग फेज में पहले तो हमारा जो एंटीजन एंटर हुआ है हमारी बॉडी में, तो उसका पहले डिटेक्शन होना, उसके बाद उसका ठीक से मतलब एडाप्ट होना, उसका लाइक जो सेल है इम्यून सेल्स वो उसको डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट होने के बाद जो है उसको समझना कि ये क्या टाइप का है, ये किस वे से आया है, इसके लिए क्या एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी सेल्स को क्या एंटीबॉडीज़, किस टाइप के एंटीबॉडीज सिक्रिएट करनी चाहिए, ये सब डिसाइड होने में इट रिक्वायर्स सम टाइम। तो ये होता है लैग फेज, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ पे एंटीबॉडी बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होती, और हुई भी तो भी थोड़ी अमाउंट में होती है। आपको ग्रोथ कर्व याद होगा ना, तो उसमें लैग फेज क्या होता है? एडाप्टिव फेज, जहाँ पे एडाप्ट होना, सेल को एडाप्ट होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेल को एंटीजन को एक्सेप्ट करने में, उसको जानने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता नहीं है, और हुआ भी तो बहुत कम होता है। सेकंड फेज इज़ द लॉग फेज, जहाँ पे हमारे हमारे जो इम्यून सेल्स है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है कि अभी ये एंटीजन कौन सा है, तो हमें अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में टाइम नहीं लगने वाला इस फेज़ में। तो एंटीबॉडी बहुत स्पीड से इंक्रीज़ होने लगती है, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन अगर लैग फेज़ में हुई है तो उसके डबल अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इसकी वजह से उसको स्टेडी फेज़ भी बोला, नॉट स्टेडी सॉरी, इसको लॉग फेज बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स एंटीबॉडी का टाइटर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। अगर डिटेक्शन किया ब्लड का साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द लॉग फेज।
देन द थर्ड फेज इज द प्लेट्यू फेज और द स्टेडी स्टेट। ओके, सो इन दैट फेज, ये लास्ट फेज है, मतलब यहाँ पे इसका नाम ही है कि प्लेट्यू फेज है और स्टेडी फेज है, मतलब यहाँ पे जो है एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी है, मतलब जितनी एंटीबॉडीज है उतना एंटीजन है। अभी लॉग फेज में वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था, अब वो इस लेवल तक इंक्रीज होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तो ये होता है स्टेडी फेज। और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होता है, इक्वल होता है। ओके, देन द डेथ फेज में, फेज ऑफ डिक्लाइन, नॉट डेथ फेज ग्रोथ फेज में, ग्रोथ साइकिल में होता है, ग्रोथ कर्व में होता है। हियर देयर इज द फेज ऑफ द डिक्लाइन। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है डिक्लाइन फेज में एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ फिर कि एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है कैटाबॉलिज्म का, तो उससे क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो उसको किल किया जाता है, उस एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को। तो ये मैकेनिज्म से क्या होता है, एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, और वो उतना ही होता है जितना लैग फेज में था। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसके वजह से इट इज़ द फेज ऑफ डिक्लाइन, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स टू गेट vanished. Okay, so at this phase also the antibody concentration is less and almost same as in the lag phase, जहाँ पे जस्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ था और यहाँ पे प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ओके, सो दिस इज द फोर फेजेस ऑफ द दिस आर द फोर फेजेस ऑफ द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, लैग फेज, लॉग फेज, plateau and the steady phase, and the last one is the phase of decline. Okay, then the second or the again the one more important point of this chapter is the primary and the secondary response kinetics. आपको मैंने जब इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया, शायद याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जब फर्स्ट टाइम जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तब रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम लेता है डेवलप होने में, और जब वही एंटीजन सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर होता है तब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत क्विकली जनरेट होता है, टाइम नहीं लेता जनरेट होने में। तो इसका क्या काइनेटिक्स है, मतलब ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसका मतलब एंटीबॉडी किस स्पीड में जनरेट होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कितनी स्पीड में एंटीबॉडी जनरेट होती है, कितनी एंटीबॉडी जनरेट होती है, उसका स्टडी करना इज़ द काइनेटिक्स। ओके, मतलब स्पीड का स्टडी करना इज़ द काइनेटिक्स। तो यही काइनेटिक्स हम देखने वाले हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स का और द सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स की काइनेटिक्स की बात करें तो यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, जो ग्राफ है हम उसके बेसिस पे देखने वाले। सो क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, एंटीजन जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर होने वाला है या हो चुका है, वो फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है, मतलब हमारे बॉडी के लिए वो एकदम न्यू है, तो वो डिटेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डिटेक्ट हो भी गया तो उसके अगेंस्ट उसको समझने के लिए कि वो कौन सा एंटीजन है, वो सोल्यूबल है, वो थोड़ा लार्ज है, थोड़ा स्मॉल है, या वो इनसोल्यूबल है, या वो वायरस है, या वो बैक्टीरिया है, या वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, इंट्रावेनस है, सबक्यूटेनस है। मैंने आपको सिखाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द इम्यूनोजेनेसिटी में कि एंटीजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, मतलब वो सोल्यूबल हो तो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इनसोल्यूबल हो तो कम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी बॉडी डिटेक्शन स्टार्ट करती है कि ये जो है कौन सा एंटीजन है, कौन सा टाइप है, कहाँ से हमने इसको इंजेक्ट किया है, इंट्रावेनसली किया है, ओरली किया है, या सबक्यूटेनियसली किया है। ये सब जानने के लिए बहुत टाइम लगता है बॉडी को, और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैंने आपको वहीं पे सिखाया था। देन हमारी बॉडी ने अभी वो जान लिया, ओके, उसने जान लिया कि ये ऐसा ऐसा एंटीजन है, तो हमें अब इसके लिए एंटीबॉडी जनरेट करनी है। तो पहले जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो जनरली होती है IgM। ओके, IgM बहुत थोड़ी देर तक जनरेट होती है, उसके बाद सडनली IgG जो है वो बहुत सारे अमाउंट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लॉग फेज जो है मैंने आपको अभी जो सिखाया था, जब
एंटीजन डिटेक्ट होता है हमारी बॉडी में, मतलब वो कौन सा टाइप है वगैरह, तब क्लोनल सिलेक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तब मैंने आपको लास्ट मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो बी सेल्स ही जनरेट करती है, मैंने आपको बताया था। तो बी सेल जो है जब वो डिटेक्ट करती है एंटीजन, तो उनका क्लोनल सिलेक्शन होता है, मतलब ऐसी बी सेल सिलेक्ट की जाती है जो कैपेबल है उसके अगेंस्ट बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। तो ऐसी बी सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन बी सेल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद वो सब जो है डिवाइड होती है इनटू द मेमोरी सेल एंड इनटू द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल आपको पता है क्या करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है। तो एंटीबॉडी पहले वो कौन से डेवलप करेगी, वो डेवलप करेगी आईजीएम। आईजीएम डेवलप करेगी एंड देन थोड़ी ही टाइम में आईजीएम होना स्टार्ट, लाइक आईजीएम जो है बस लैग फेज में डेवलप होगी। लॉग फेज में बहुत सारी आईजीजी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। वो फिर वही फेज़, फिर वो कांस्टेंट रहेगी, फिर वो डिक्लाइन हो जाएगी। ये सब सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी फेजेस में सिखाई थी। तो ये जो प्रोसीजर है इट इज़ द काइनेटिक्स ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो पहला एंटीजन एक्सपोजर पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है ये उसकी काइनेटिक्स है। फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, फिर सडनली एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, फिर वो इक्वल हो जाएगा एंटीजन के अमाउंट में। फिर इक्वल होने के बाद फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, फिर से कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो ये रिस्पॉन्स जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, अबाउट फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स तक टाइम लगता है। तो ये रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स यू कैन सी इन द डायग्राम हियर। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को होने में टाइम नहीं लगता बिकॉज हमारी मेमोरी सेल्स होती है बी सेल्स, उनको पता है कि ये एंटीजन पहले आ चुका है। वही एंटीजन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आया वो अगर सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर करने आया, मतलब उसी टाइप का कोई एंटीजन अगर हमारे बॉडी में फिर से एंट्री करने आया, तो हमारे पास बी सेल्स ऑलरेडी रहती है। तो वो बी सेल्स क्या करेगी, फिर इस टाइम पे हमें लैग फेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारी एंटीजन एंटीबॉडी को ऑलरेडी पता है कि वो कौन सा एंटीजन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसलिए उसको इतना टाइम नहीं लगता समझने में ये सब चीज़ें। इसके वजह से यहाँ पे लैग फेज एक तो बहुत कम है, कम टाइम के लिए रहता है, या तो फिर होता ही नहीं। देन आईजीजी जो है एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली डेवलप होती है, आईजीएम बिल्कुल डेवलप नहीं होती। यहाँ पे जो हमने वहाँ पे देखा था प्राइमरी में कि वो आईजीएम डेवलप करता है और फिर आईजीजी डेवलप करता है। यहाँ पे आईजीएम के अलावा सभी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है, आईजीएम नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी एंटीजन है और उसके अगेंस्ट हमें क्या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है। देन जो स्टेडी फेज है ना, जो सेकंड फेज लॉक फेज है ना, वो बहुत जल्दी आता है और जल्दी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने के बाद जो स्टेडी स्टेट होता है वो भी बहुत देर तक रहता है और जल्दी आता है, ओके, एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स। और वो जो स्टेडी स्टेट है, मतलब एंटीजन का एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होता है और वो मेंटेन भी काफ़ी देर तक रहता है, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट बहुत देर तक रहता है। और इसकी वजह से डिक्लाइन फेज जल्दी नहीं आता, मतलब एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत देर तक हाई रहता है। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि यहाँ पे इन द सेकंड फेज ये एंटीबॉडी जो स्टेडी स्टेट है वो बहुत देर तक ये इंक्रीज़ होता ही रहेगा और ये बहुत देर तक मेंटेन रहेगा। डिक्लाइन फेज बहुत लाइक रेयरली आएगा और बहुत कम टाइम के लिए आएगा, या तो आएगा ही नहीं। तो ये होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नाउ इन दिस रिस्पॉन्स यहाँ पे होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फ्यू आवर्स में हो जाता है या फ्यू डे, लाइक बहुत कम टाइम फ्यू डेज में हो जाता है, ओके। देन दिस one more thing which is given in your syllabus is the significance of vaccination program। वैक्सीनेशन आप सब ने ली होगी, आपको पता है कि वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इम्यूनाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें जो है वायरस या बैक्टीरिया जो भी पैथोजन से उनके अटैक से कुछ हार्म ना हो, इसके लिए हमें पहले ही थोड़ा उसका डोसेज दिया जाता है, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है हमारी बॉडी को, ऐसा ऐसा वायरस है, अगर ये आ जाए तो तुम अलर्ट रहना, ओके। ऐसा हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं इन शॉर्ट। तो वैक्सीनेशन में जो है दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन होते हैं, एक तो होता है, ओके आई विल शो यू। तो एक तो होता है प्राइमिंग डोज और द बूस्टर डोज एंड सेकंड होता है नेगेटिव फेज। तो वैक्सीनेशन में हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, उससे लाइक वायरस या बैक्टीरिया का एक पार्ट
जो पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, वो एक पार्ट जो है हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो उसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव की जाती है। बस उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है हमारी बॉडी में कि इससे मिलता जुलता अगर कुछ वायरस बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आए नेक्स्ट टाइम, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमने अभी सीखा कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता डेवलप होने में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर रियल बैक्टीरिया रियल वायरस ने हम पे अटैक किया तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स रहेगी और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और एंटीजन जल्दी एलिमिनेट होगा। तो यही वैक्सीनेशन का एम है। तो आपने सुना होगा या सॉरी आपने ली होगी वैक्सीन बचपन में या किसी की देखी होगी लेते हुए, तो आपको पता होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीनेशन है वो कभी भी एक ही टाइम में ख़त्म नहीं होती, उनको 2-3 बारी एक ही वैक्सीन 2-3 बारी देनी पड़ती है। तो ये सब क्या होता है, एक प्राइमिंग और दी प्राइमिंग डोज होता है और बाकी जो डोसेज है वो होता है सेकेंडरी डोज और दी बूस्टर डोज। ओके, सो जो प्राइमिंग डोसेज मतलब क्या कि पहली बारी में अगर हमने इंजेक्ट किया तो ठीक है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होगी, बट वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रहेगी। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहने के लिए मेमोरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, इसकी वजह से हमें बार बार उस लाइक अबाउट 2 to एक टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन हमें उससे बूस्टर डोसेज हमें दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है, ताकि हमारी बॉडी एक ऑप्टिमम एंटीबॉडी जो है प्रोडक्शन करे और वो एंटीबॉडी ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहे एंड उसकी मेमोरी सेल्स जनरेट हो। ये एम होता है बूस्टिंग का, प्राइमिंग का, मतलब बूस्टिंग डोज का और द प्राइमिंग डोज का। ओके, देन सेकंड इज़ द निगेटिव, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लाइव वैक्सीन जो होती है लाइक पोलियो, तो जनरली उसको हमारे यहाँ देते हैं बट जनरली उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज फर्स्ट टाइम में ही लाइव है, इसकी वजह से फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। देन द सेकंड थिंग इज़ द निगेटिव फेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि इफ़ द सेम एनिमल इज सब्सिक्वेंटली एक्सपोज टू द सेम एंटीजन कैरिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द सर्कुलेशन, a temporary fall in the level of circulating antibody occurs due to the combination of the antigen and the pre-existing antibodies। तो अगर हमने एक एंटीजन की बहुत लेस टाइम इंटरवल में अगर एंटीबॉडी मतलब लेस इंटरवल में अगर हमने एक ही एनिमल को बार बार उस वायरस से या बैक्टीरिया पैथोजन से इंजेक्ट किया या एंटीजन से इंजेक्ट किया, तो क्या होता है, जो पहली बारी में जो इंजेक्शन दिया था हमने, जो वायरस को इंजेक्ट किया था या बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था, जो फर्स्ट टाइम हमने इंजेक्ट किया था एंटीजन को, तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है वही एंटीबॉडीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंजेक्शन में काम आती, मतलब न्यू एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती। तो ये डिसएडवांटेज है, दैट इज़ द निगेटिव फेज, मतलब जो फर्स्ट टाइम में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है उसी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा गैप रखना पड़ता है वैक्सीनेशन में। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द निगेटिव फेज। नाउ वैक्सीनेशन जो है, ओके नाउ वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कहीं ना कहीं एक हमने जब इम्यूनिटी देखा था तो उसके डिफरेंट टाइप्स थे, तो उसमें एक था आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। इट इज़ नॉट नेचुरली प्रेजेंट, हम बाहर से इंजेक्ट करके अपने आप में इम्यूनिटी डालते हैं, तो इसकी वजह से इट इज़ द आर्टिफिशियल टाइप ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। देन the children require the multiple booster, we know that 1-2-3 महीने के बाद फिर से वो वैक्सीनेशन दिया जाता है, वही टाइप का जो पहले दिया था उसको हम बूस्टर इम्यूनिटी बोलते हैं। देन द मल्टीपल इम्यूनाइजेशन विद द पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स इज डेवलप। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती बट फिर भी किया जाता है पोलियो वैक्सीन का, बार बार उसको दिया जाता है टू द चिल्ड्रन, बिकॉज वो मेक श्योर करना होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एडिक्वेट डेवलप हो, क्योंकि पोलियो इज़ वेरी डेंजरस वायरस, दैट इज़ वाई उसका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, इसलिए जो है पोलियो वैक्सीन्स भी इंटरवल्स के बाद दी जाती है, अगेन बूस्टर डोज अगेन आई विल से। सो दिस इज़ द basic introduction of humoral immune response significance, and we have studied the primary and the secondary immune response kinetics. So I hope you have understood, and in the next lecture we will start the next point of this chapter, which is the actual point
which is the antigen processing and presentation. Thank you.